So for range what we do, so पहले तो domain का, domain is set of all possible real numbers x for which fx is a real number. तो वो सारे x के values जहाँ पे fx का real number value है, real value है. And range is set of values of fx where x is a real number. So range of f is usually denoted by, so for all fx, range of f is set of all values of fx for which x belongs to the domain of x or x is a real number. तो पूरे डोमेन में उन डोमेन में जो fx का वैल्यू होगा, that will give you the range of value, range of the function. So डोमेन में जो x के वैल्यूज हैं वो अगर fx में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो fx का वैल्यू निकल के आता है, that is the range of the function. So let us do some questions now. So I did few of that in the last class as well. So but yeah, I'll again discuss everything so that you know it is fresh in your mind. So let's say I'll do one of them. First one, मान लो यहाँ पे बस domain निकालने बोला, we'll find the range as well. Okay, so domain and range as well, so that it is clear. So these kind of functions are known as polynomial function. Sorry, rational function, not polynomial function. So these are rational functions. Now in rational functions, to find the domain, जो algorithm हम लोग use करते हैं, so if we have to find the domain of this function fx, so what you need to do is domain of fx के लिए the denominator should not be equal to 0. Denominator should not be equal to 0. So that means x square minus, for fx to be real, हमें फंक्शन को रियल बनाना है. फॉर fx to be real, we have to find the set of all values of x for which fx is a real number. So for fx to be real, x square minus 8x plus 12 should not be equal to 0. So अगर fx को रियल नंबर होना है तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0. सो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, वी हैव x स्क्वायर minus 6x minus 2x plus 12 is not equal to 0. So if you take x as common, you get x minus 6 minus 2 as common, x minus 6 is not equal to 0. So this will give us x minus 2 into x minus 6 is not equal to 0. So that means x is not equal to 2 or x is not equal to 6. Okay. So this is the domain of the function fx. So अब x is not equal to 2 or x not equal to 6 का मतलब domain of the function is equal to set of all real numbers r minus of 2, 6. तो सारे रियल नंबर में से 2 और 6 को अगर रिमूव कर देंगे, so we will get the domain of the function. Now once you have got the domain, to find the range of fx, range of this function, so how to find the range of function is all possible values of fx for which x is real. So all values of fx when x belongs to the domain of the function, right? तो डोमेन ऑफ द फंक्शन में जो x है उसमें जो सारे fx के वैल्यूज होंगे वो रेंज देगा. तो जब भी ये पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम लोग y से इक्वेट कर देते हैं. लेट द फंक्शन y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू y which is x square plus 2x plus 1 divided by x square minus 8x plus 12. Now what you need to do, we have to find all values of y when x is real.
सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो y टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 is equal to x square plus 2x plus y. So when you bring everything on the left side, we get y times x square minus of x square minus y times 8x minus of 2x plus 12y minus of is equal to 0. y को कॉमन ले लेंगे, सॉरी एक्स स्क्वायर को यहाँ कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये बचेगा y माइनस 1. यहाँ पे माइनस 2x को अगर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 4y प्लस 1 प्लस ऑफ, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, 12y माइनस 1 इज इक्वल टू 0. नाउ सी the x square minus 2 times 4y plus 1, right, and then plus of 12y minus 1 is equal to 0. For x to be real, जब x को रियल होने के लिए इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट हैज टू बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, मतलब माइनस 2 टाइम्स 4y प्लस 1, ये b है तो b स्क्वायर माइनस 4ac 4 टाइम्स y माइनस 1 इंटू 12y माइनस 1, राइट, हैज टू बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0. क्लियर है ना भाई? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट्स कब होता है? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होता है. सो फॉर x टू बी रियल द डिस्क्रिमिनेंट हैज टू बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0. ये क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Have you written this? I'll just move to the next slide. That's why I'm saying. मतलब इसको मिटा के दूसरा फिर से लिखेंगे. Yes, sir. Everyone has written this? नमन लिखा बेटा? Yes, sir, लिख दिया. So we had minus of 2 times 4y plus 1, so 4y plus 1 का होल स्क्वायर minus 4 times y minus 1 into 12y minus 1 has to be greater and equal to 0. So solve कर लेते हैं. 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 टाइम्स 16y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8y माइनस 4 टाइम्स 12y स्क्वायर टाइम्स 12y स्क्वायर और माइनस y माइनस 12y माइनस 13y, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 1 is greater and equal to 0. 16 4 is 64y square plus 4 plus 32y minus 48y square plus 52y minus 4 is greater and equal to 0. Plus 4 minus 4 कट गया. 64 minus 48, तो 16y square plus 84y is greater and equal to 0. 4y कॉमन ले लो, 4y plus 21 is greater and equal to 0. So अब देखो हमारे दो फैक्टर्स हो गए. तो 4 तो पॉजिटिव नंबर है, उधर लेके चले जाओ तो y टाइम्स
4y plus 21 is greater and equal to 0. अब इसके हम लोग क्या करते हैं, we find, जो मैंने बताया था यहाँ पे वेवी कर्व मेथड इसको कहते हैं, बहुत बहुत जबरदस्त नाम है, वेवी कर्व मेथड, साइन रूल भी इसको कहते हैं बेसिकली। तो अब यहाँ पे ना इसके दोनों के मतलब रूट्स निकालते हैं, y को 0 से इक्वेट करोगे, y इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या हो जाएगा 4y प्लस 21 इज इक्वल टू 0 करोगे, तो इससे तुमको आ जाएगा y इज इक्वल टू -21/4। तो ये दो रूट्स हो गए इसके, तो एक हो गया तुम्हारा -21/4 और दूसरा हो गया 0। ठीक है, अब इनके बीच में कोई भी वैल्यू डाल दो, मान लो 0 से आगे 1 है, तो अगर 1 का वैल्यू इसमें डालते हो इस इक्वेशन में, y इंटू 4y प्लस 21, इस एक्सप्रेशन पे अगर 1 का वैल्यू हम लोग डालेंगे, तो जो हमारा वैल्यू आएगा y इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो 4 प्लस 21 25 हो गया, 25 इंटू 1 25 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, तो मतलब यहाँ पे पॉजिटिव होगा, राइट। तो यहाँ पे होगा नेगेटिव और यहाँ पे फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। इसका जो हम लोग मतलब ऑल्टरनेट चलता है, एक पॉजिटिव हो गया तो बाकी चेक करने का जरूरत नहीं है, मतलब यू जस्ट नीड टू चेक एनी वैल्यू which lies between 0 and infinity. So put the value, any value, you can put 1, 2, 3, any value here in this expression. So इस एक्सप्रेशन में जब वो y का वैल्यू डालेंगे तो उसके बाद देखते हैं कि पूरे जो हमारा जो टर्म है, ये जो पूरा y इंटू 4y प्लस 21, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो y का वैल्यू जब हम लोग 1 रखते हैं तो ये 25 हो जाता है पूरा वैल्यू, विच इज अ पॉजिटिव नंबर। सो 0 से बड़े हर नंबर पे ये पॉजिटिव देगा वैल्यू। अब एक पॉजिटिव हो गया तो उसके जस्ट पहले वाला ये नेगेटिव होगा और फिर यहाँ पे फिर से पॉजिटिव होगा। तो दिस हेल्प्स यू टू सॉल्व all the questions which are there in inequalities. So if we have something like this where y into 4y plus 21 is greater and equal to 0, that means this will only be possible, greater and equal to 0 मतलब positive, positive कब है, -21/4 से less, that means this is only possible when y is less than equal to -21/4 और y is greater and equal to 0। तो जो इसका रेंज जो होगा, y का वैल्यू होता है, वही रेंज होता है, रेंज हो जाएगा हमारा -∞ से लेके -21/4, -∞ नॉट इंक्लूडेड, -21/4 इंक्लूडेड, यूनियन 0 से लेके इंफिनिटी, 0 इंक्लूडेड एंड इंफिनिटी नॉट। Is it clear? Is it clear to everyone? Yes, sir. सेकेंड वाला सॉल्व करके मुझे बताओ, मुझे डोमेन भी बताना और रेंज भी बताना है सेकेंड वाले का। प्लीज सॉल्व इट एंड लेट मी नो द आंसर फॉर दिस। सभी ने इसको लिख लिया? Yes, sir.
आया नहीं आप लोग का? डोमेन आया किसी का? भाई कोई तो सॉल्व करके बताओ। निहारा और अमृत, प्लीज बताइए आंसर मुझे। चलिए फिर मैं ही बताता हूँ। डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, अभी सेकंड वाले का डोमेन निकालना है। डोमेन निकालने के लिए द वैल्यू ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स, सो फॉर एफ एक्स टू बी रियल, the denominator of this is again a rational function. The denominator cannot be equal to 0. So x square minus 8x plus 4 is not equal to 0. So इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, x is not equal to 8 plus minus b square 64 minus 4ac by 2. ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। सो x इज नॉट इक्वल टू यहाँ पे 8 प्लस माइनस रूट 48 अपॉन 2, और दिस विल गिव यू x इज नॉट इक्वल टू, 2 कॉमन ले लेंगे तो 4 प्लस माइनस, यहाँ पर से भी 2 कॉमन आएगा, मतलब 4 कॉमन बाहर निकालेंगे तो ये 12 बचेगा। 4 प्लस माइनस 2 रूट 3, ठीक है। So x should not be equal to 4 plus minus 2 root 3. So that means domain of the function, set of all real numbers are minus of 4 plus minus 2 root 3. इन दो नंबर 4 minus 2 root 3 और 4 plus 2 root 3 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर्स जो हैं डोमेन में इस फंक्शन। अब डोमेन निकालने के बाद जब रेंज निकालना है, टू फाइंड द रेंज, हम लोग इसको y से इक्वेट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू x प्लस 7 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 इज इक्वल टू x प्लस 7। सो ये हो जाएगा yx स्क्वायर माइनस 8yx प्लस 4y इज x प्लस 7। लेफ्ट साइड ले आए, yx स्क्वायर minus 8yx minus x plus 4y minus 7 is equal to 0. Now, for x to be real, x को real होने के लिए the discriminant has to be greater and equal to 0. So discriminant here is so इसको अगर थोड़ा सा अरेंज कर लें तो दिस विल बी yx स्क्वायर माइनस ऑफ, कॉमन ले लो मतलब 8y प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब माइनस ऑफ 8y प्लस 1, ये बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू 4y minus 7c should be greater and equal to 0. So this is 64y square plus 1 plus 16y minus of 4y into 4y. This is 16y square. 4y into minus 7. So this is
plus of 28y is greater and equal to 0. 64 minus 16, 48y square, 16y plus 44y plus of 1 is greater and equal to 0. Okay. So 48y square plus 44y plus 1 is greater and equal to 0. So now this is, इसका अगर हम लोग y का वैल्यू निकाल के इसको सॉल्व करते हैं, इसको इसके इक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो we'll get y is equal to, जो क्रिटिकल पॉइंट्स अगर हम लोग देखते हैं जहां पे ये चेंज कर रहा होगा साइन, सो माइनस बी मतलब -44 प्लस माइनस बी स्क्वायर 48 स्क्वायर माइनस सॉरी बी स्क्वायर 44 स्क्वायर -4 into 48 by 2a 96. So y is equal to -44 plus minus, इसको कैलकुलेट करोगे so we have 44 square minus 4 into 48 70 1744 का स्क्वायर रूट अगर हम कर लें -41.76 -44 plus minus 41.76 divided by 96. बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ गया एक्चुअली, वही डोमेन पूछा हुआ था और उसको उसमें वैल्यूज वैसे हैं, बट बेसिकली तुम तरीका वही है कि इसमें जो दो जीरोस आएंगे राइट, उनको हम लोग प्लॉट कर लेंगे और उनको प्लॉट करने के बाद वील सी एनी ऑफ द वैल्यूज विच लाइज बिटवीन एनी ऑफ द इंटरवल एंड सी की द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये जो पूरा फंक्शन है ये इस फंक्शन का वैल्यू क्या आता है, अगर ये पॉजिटिव जहां जहां पे आएगा वो y के वैल्यूज इसके रेंज हो जाएंगे. ठीक है, दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वी डोंट, मतलब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ पे, इसीलिए रेंज निकालने नहीं बोला हुआ. ठीक है बच्चों, मेथड आ गया ना समझ में बच्चों? यस सर. ये भी हम लोग पिछली क्लास में बात किए थे, वी डिस्कस्ड अबाउट दिस इन द लास्ट क्लास, सो वी विल नॉट डू द सेम क्वेश्चन यहाँ पे. लेट अस डू दीज क्वेश्चंस डोमेन एंड रेंज के लिए, so that you get a better understanding of the whole thing. So in this question, let's say we are finding the domain and range of the first one. So we have the function fx is equal to x minus 3 upon 2x plus 1, right? So to find the domain, we know again it is a rational function. So for fx to be real, we have 2x plus 1 not equal to 0, or 2x is not equal to minus 1, x not equal to minus 1 by 2. So domain of this function is set of all real numbers minus of minus 1 by 2. रियल नंबर में एक बस माइनस 1 by 2 को छोड़ के बाकी सारे. अब रेंज निकालना है, रेंज निकालने के लिए टू फाइंड रेंज हम लोग क्या करेंगे, इसको y से इक्वेट कर लेंगे. y इज इक्वल टू x माइनस 3 बाई 2x प्लस 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो y इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3. सो 2xy प्लस y इज x माइनस 3. सबको इधर लेके आ जाओ
सो ये हमारा आ जाएगा 2xy minus x is minus 3 minus y. Right. x को कॉमन ले लो, 2y minus 1 is minus of 3 plus y. So x is equal to minus of 3 plus y divided by 2y minus 1. माइनस साइन को अंदर लेके चले जाओगे तो x is equal to 3 plus y. डिनोमिनेटर में इसको 1 minus 2y लिख सकते हैं. x का वैल्यू y के टर्म में लिख लिया. नाउ फॉर x टू बी रियल, for x to be real, 1 minus 2y shall not be equal to 0. So 1 minus 2y shall not be equal to 0. That means 2y should not be equal to 1 or y should not be equal to 1 by 2. तो जो रेंज होगा इसका, रेंज इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 by 2. Is it clear? क्लियर है बच्चों? यस सर. कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना तो फिर आसान लगने लगेगा चीज. अभी तुम लोग को डर इसलिए लगता है क्योंकि स्कूल का टीचर सब खिचड़ी बना देता है. कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है भाई. डोमेन निकालना है तो तुमको वो सारे वैल्यू देखने हैं एफ के, मतलब वो सारे एक्स के वैल्यू देखने हैं जिससे एफ एक्स रियल हो जाए. रेंज उसका जस्ट उल्टा है. तुमको वो सारे एफ एक्स के वैल्यूज ढूंढने हैं, मतलब वाई के वैल्यूज ढूंढने हैं जहां पे कि एक्स रियल हो जाए. फंक्शन का वैल्यू तुमको ढूंढना है जब एक्स रियल हो रेंज के लिए, और डोमेन के लिए एक्स का वैल्यू ढूंढना है जब एफ एक्स रियल हो. बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड. लिख लिया फर्स्ट वाला? यस सर. सेकंड वाला बताइए आंसर हमको, डोमेन और रेंज का. Sir, all real number. डोमेन ऑल रियल नंबर है. रेंज बताइए. Sir, range भी all real number है. तो ऑल रियल नंबर. नहीं, रेंज में आंसर में तो कुछ और दिया है. एक बार फिर से चेक कीजिए. आंसर दे रखा है 0 से लेके 1 तक, 0 इंक्लूडेड 1 नहीं इंक्लूडेड. चलो करके देख लेते हैं क्या आ रहा है दिक्कत. So we are doing the second question. The function fx is equal to x square by 1 plus x square. Now for domain, for fx to be real, denominator should not be equal to 0. X square plus 1 should not be equal to 0. X square is not equal to minus 1. So x square basically क्या है? Square of a number can never be a negative number. So this is satisfied for all x belongs to R. ठीक है? This is true for all x belongs to R. So domain is equal to set of all real. Excuse me, sir. Sir, range is coming close bracket 0, 1 open brackets. Yes, yes, yes. That's it. That's the range. सही है.
अब ये डोमेन हो गया हमारा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता ना, स्क्वायर ऑफ ए नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। सो अब हमारे पास आ जाते हैं हम लोग रेंज के लिए। सो फॉर रेंज इसको फिर से y के टर्म्स में लिखेंगे, y इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वैल्यू इधर लेके जाओ तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। सो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे, y माइनस 1 प्लस ऑफ y इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ये देखो, ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, इसमें x का टर्म नहीं है बस, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट हैज टू बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 अगर हम लोग करते हैं, राइट, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, b यहाँ पे 0 है, तो b स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर, राइट, माइनस 4ac 4 इंटू y माइनस 1 इंटू y, so b square minus 4ac has to be greater and equal to 0, right? So that means minus of 4 times y minus 1 into y has to be greater and equal to 0. नेगेटिव साइन को अगर पूरे को -4 से अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो ये साइन चेंज हो जाएगा, मतलब y माइनस 1 इंटू वाई इज लेस एंड इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब इसके दो क्रिटिकल पॉइंट्स है, मतलब जहाँ पे ये सेटिस्फाई हो रहा है, एक y इज इक्वल टू 0 पे और 1 पे, राइट। अब इन दोनों पे हम लोग को 0 और 1, मान लो 2 पे चेक करते हैं, तो 2 माइनस 1 इंटू 2 पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे नेगेटिव है और ये भी पॉजिटिव है, सो राइट। अब ये हम लोग को नेगेटिव वाला बस लेना है ना। अब ये चीज जो है 1 नॉट इंक्लूडेड इसलिए बोल रहा है कि जो यहाँ पे जो वैल्यू तुम देखोगे, अच्छा ये जो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा, अगर इसको यहाँ पे एक्स स्क्वायर को अगर हम लिखते हैं, एक मिनट, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये चीज आ गया, हाँ, इसको अगर हम लोग ये लिखेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1 इज माइनस वाई, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई बाय वाई माइनस 1। तो ये जो डिनोमिनेटर, बिकॉज x हैज टू बी रियल, y माइनस 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, सो दैट मीन्स y इज नॉट इक्वल टू 1। इज इट क्लियर? ठीक है, तो y कैन नॉट बी इक्वल टू 1, तो इसको जो हम लोग रेंज जब लिखेंगे तो 0 लेस एंड इक्वल टू y इज लेस देन 1, ये हम लोग का रेंज होगा। तो रेंज इज इक्वल टू 0 इंक्लूडेड एंड 1 नॉट इंक्लूडेड, तो ओपन ब्रैकेट 1 और क्लोज ब्रैकेट 0। इज इट क्लियर? क्लियर है बच्चों? यस सर। लिख लो सब लोग। थर्ड वाला अटेम्प्ट करो, थर्ड और उसके बाद फोर्थ वाला, जल्दी जल्दी कीजिए। या तो ऐसा कर लिया, अभी रुक जाइए, आप लोगों ने ये कर लिया, लिख लिया सबने? यस सर। Yes, sir. एक ही स्क्वायर रूट वाला भी कर लेते हैं।
find the domain and the range of the following function. So y is equal to fx is equal to root under x square minus 4 है. अब for fx to be real, real कब होगा? जब ये square root, we know that square root of a positive number is only possible. We cannot have a square root of a negative number for a real value function. So x square minus 4 has to be greater and equal to 0, right? So x square minus 4 is greater and equal to 0. इसको factorize कर दोगे तो x minus 2 into x plus 2 is greater and equal to 0. So अब इसको x minus 2 x plus 2 greater and equal to 0 के लिए अब इसको अगर 2 और minus 2 और 2 ये दो इसके zeros हो गए इस फंक्शन के, राइट? और हम लोग चेक कर लेते हैं. 0 के लिए अगर चेक करेंगे तो -2 + 2 नेगेटिव हो गया, तो ये यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा और यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा. सो ये इसका कर्व हो गया, राइट? तो अगर इसका डोमेन निकालना होगा, सो डोमेन इज इक्वल टू -∞ से -2 इंक्लूडेड यूनियन ऑफ 2 से इंफिनिटी. 2 इंक्लूडेड है, इंफिनिटी नहीं. डोमेन क्लियर है सभी को? अगर हम लोग रेंज के लिए बात करते हैं तो रेंज का तो वही तरीका है. y इज इक्वल टू हमने लिख लिया रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4. अब क्या करो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, अब स्क्वायर कर देते हैं हम लोग, ठीक है? So square root of a real number is always non-negative. Squaring, we get y square is equal to x square minus 4. So इससे हमारा आ जाएगा x square is equal to y square plus 4. Now so x मतलब अगर डोमेन में लाई करेगा तो y square plus 4 has to be greater and equal to 0, because for x to be real, basically x क्या हो जाएगा? रूट अंडर y square plus 4. For x to be real, y square plus 4 has to be greater and equal to 0, or y square is greater and equal to -4. बट यहाँ पे हमें पता है कि y क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो y कैन नॉट बी नेगेटिव. y इज ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0. y बिकॉज देखो इस रेंज में 2 से इंफिनिटी कोई भी नंबर डालोगे, 3 डालते हो 9 - 4, -3 डालोगे तो भी 9 - 4 5 आएगा. तो स्क्वायर रूट जो y जो है हमेशा पॉजिटिव नंबर ही होगा, राइट? इस डोमेन में फॉर x टू बी x belonging to the domain of the function, so in this domain y is always positive. तो यहाँ y square greater and equal to -4 आ रहा है, बट बेसिकली आपका y will be greater and equal to 0 ही हम लोग को लेना पड़ेगा, है ना? y बिकॉज देखो ग्रेटर एंड इक्वल टू -4 का तो मतलब y तो हमेशा पॉजिटिव होता है, और ये यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं y को हमेशा ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होना है. सो y ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होना है, तो जो रेंज हो जाएगा, रेंज विल बी इक्वल टू 0 से इंफिनिटी. सो मोस्ट ऑफ द फंक्शन जो स्क्वायर रूट वाला आएगा, तुम रेंज हमेशा देखोगे कि 0 से इंफिनिटी ही अक्सर मतलब ज्यादातर आपको दिखेगा, रेंज 0 to इंफिनिटी ही आता. ये क्लियर है बच्चों? Is it clear?
तो जवाब दो, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. सेकंड वाला करो, 9 माइनस एक्स स्क्वायर वाला. So domain -3, 3. Yeah, domain is -3, 3 and So range is 0, 3. range is 0, 3. Correct. Very good, Nihara. Okay. So domain पे पहले आते हैं. डोमेन के लिए हम लोग का क्या है? fx to be real के लिए 9 minus x square has to be greater and equal to 0, और x square is less and equal to 9. Yeah. X square minus 9 is less and equal to 0. X square minus 3 square is less and equal to 0. X minus 3 into x plus 3 less and equal to 0. तो अब यहाँ पे दो -3 और 3 ये वैल्यूज हो गए. 0 डाल के देखेंगे तो ये 3 इंटू -3 नेगेटिव ही हो गया. तो ये नेगेटिव, पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है. ठीक है. तो अब ये जो है नेगेटिव कहाँ पे होगा? -3 से 3 के बीच में. सो द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन is -3 and 3 both included. ठीक है. So this is the domain of the function. Now let's come to range. Y is equal to root under 9 minus x square. So basically y square is equal to 9 minus x square. X square is 9 minus y square. 9 minus y square has to be greater and equal to 0. Y square is, or y square minus 9 is less and equal to 0. Y square minus 3 square is less and equal to 0. उसके अलावा यहाँ पे हम लोग को पता है कि y has to be greater and equal to 0, right? So यहाँ से आएगा हमारा y minus 3 into y plus 3 less and equal to 0. इसको अगर हम लोग करते हैं, so -3 और 3 में लेस एंड इक्वल टू 0 में ये आता है पूरा नेगेटिव, बट ये y ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 ऑलरेडी है, तो मतलब 0, 3. दिस इज द रेंज. मतलब y विल नॉट बी एबल, मतलब रेंज नेगेटिव में नहीं जाएगा, और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू इसका 3 हो सकता है, तो 0, 3 हो जाएगा. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. सो विल स्टॉप हियर. आप लोग खूब प्रैक्टिस कीजिए डोमेन रेंज के क्वेश्चंस का, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैं देखता हूँ, या तो मैं ही खत्म कर दूंगा. आज कौन सा दिन है? ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे. 2 दिन में कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा. मैं ही पढ़ा देता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर तुम लोग. ठीक है. एनीवेज कुछ नया करने के लिए नहीं है, तो वील डू कॉम्प्लेक्स नंबर, वील रिवाइज इन द नेक्स्ट 2 क्लासेस. ओके. सर, यस. अगर अब
एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं तो आप क्या क्लासेस रख रहे हो या फिर मेरी क्लासेस होंगी बट वही रिवीजन वगैरह करेंगे हम बस आई विल नॉट स्टार्ट एनी न्यू चैप्टर टिल 1st of October. आई विल स्टार्ट एनी न्यू चैप्टर ओनली आफ्टर 1st. तुम लोग का एग्जाम खत्म कब हो रहा है? 28th? हाँ तो वही, मतलब जब सबका खत्म हो जाएगा तभी मैं शुरू करूँगा, मतलब एक दो बच्चे को छोड़ के. तुम्हारा नमन कब खत्म हो रहा है? बाकी बच्चों का कब खत्म हो रहा है? नमन तो गायब हो गया पहले ही. निहारा और इन सब का तो सेम ही है. सहज, व्हेन इज योर एग्जाम एंडिंग? मेरा 30th को है लास्ट. हाँ वही, ऑलमोस्ट वही मुझे लग रहा है. मंथ एंड पे सभी का एग्जाम खत्म हो जाएगा तो फ्रॉम 1st October विल स्टार्ट. ऐसे भी अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है हम लोग को करने के लिए. हम लोग को बस एक 3-4 चैप्टर जो मेन बाकी है, कोनिक सेक्शन और स्ट्रेट लाइंस और लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, ये सब चीज है. मजा आएगा करने में. अक्टूबर से करेंगे उसको. तो अभी हम लोग रिवीजन ही करेंगे. आई डू ऑल द शीट्स एंड ऑल ड्यूरिंग दीज 10-15 days. ओके, चलिए, बाय एंड टेक केयर एवरीवन. थैंक यू सर.